everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Sat Shri Akal, Namaskar, Bonjour, Adab. Let's get started with today's session जिसका topic है new social and political groups in medieval India. Medieval India की history को trace कर रहे हैं हम, तो हमारा chapter है Tracing changes through 1,000 years. In the previous session, we have spoken about the first few topics. We'll be covering few topics today and the rest in the next session. So let me tell you, इस पूरे chapter को हम कुछ certain topics में divide कर सकते हैं, जो कि है earliest maps of India, historians and their sources, and the new and the old terminologies that have been used in the history, followed by new social and political groups in medieval India, regional expanse of empires in medieval India, old and new religions during medieval India, and dividing the history into periods. Okay, now we have done the first three topics in the previous session. आज के topics है हमारे social और political groups जो नए बन रहे थे और जो पुराने थे medieval India में, और उसके साथ साथ कैसे अलग अलग regional empires जो थे वो expand करते गए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे empires की expansion होती गई, and the rest will be done in the next session. The concepts that we'll be doing today is going to be the technological development, new food and beverages, क्या लोग खाने पीने लग गए थे, नया क्या बदलाव आ गया था कल्चर में, पीरियड ऑफ मोबिलिटी, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे थे, कैसे मूवमेंट्स होती थी, क्या होता था, ओरिजिन जैसे राजपूत्स का, तो मतलब मोबिलिटी जब हम कह रहे हैं तो हमारे कहने का मतलब है देयर वाज अ टाइम वेयर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, राइट. तो राजपूत जैसे मेडिवल इंडिया में थे, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक जाते हैं, उसके बाद क्या उन्हें कोई रिप्लेस करता है, उनकी हिस्ट्री को समझेंगे हम. फिर हम ये भी देखेंगे कि राजपूत जो है एक सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप की तरह कैसे उभर कर आते हैं, क्या इन्फ्लुएंस होता है उसका बाकी लोगों की जिंदगियों पे, किंगडम्स पे, सोसाइटीज पे. विल टॉक ऑल्सो अबाउट द चेंजेस इन हैबिटेट. तो जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि कैसे लोग मगध में रह रहे हैं, इंडस के अराउंड रह रहे हैं, हड़प्पा के अराउंड रह रहे हैं, अब हम समझेंगे कि जो हैबिटेट था, एनवायरनमेंट था, वो कैसे शिफ्ट होता है, इन जनरल सोसाइटी कैसे शिफ्ट होती है, कल्चर कैसे शिफ्ट होता है, नया क्या आता है, जाति और जाति पंचायत क्या होते हैं, जातीज आने लग जाएंगी तो उनका असर क्या है, पैन रीजनल एम्पायर्स मेडिवल इंडिया में, पूरी इंडिया में कौन कौन से अलग अलग तरह के एम्पायर्स थे, री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स इन मेडिवल इंडिया, एंड एन इमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस इन मेडिवल इंडिया. All of these things we are going to discuss. So let's get started. Let me also take a quick moment to introduce myself. हाय बच्चों, मेरा नाम है अंकना और मैं हूँ आपके एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. I come with an experience of more than 9 years in the field of education, and I've taught both online and offline to the students of CBSE and ICSE, and it has been a wonderful journey full of learnings, and I have done my studies in the field of humanities, and hence I specialize in English and social science. Now, before we move on, we'll take a quick moment to have the lens moment of the day. You might now probably be aware of the Imbibe Lens app. If you're not, let me just tell you, it's a magical tool which has been created as a blessing and a superpower for students, and not just for students, for anybody, for even me as a teacher or anyone who wants to learn anything. The reason being that आपका पूरा जो रिसर्च का टाइम जाता है, आप कुछ भी पढ़ रहे होते हो, आप किताब से पढ़ रहे हो या कहीं से देख रहे हो सकता है कि आप उसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो या आपको समझ नहीं आया, and you want to dwell more and learn more about it. So what you usually do is you go ahead and search, right? Google, YouTube, this, that, and it takes a lot of time, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, sometimes 30 minutes to exactly find what you're looking for, to be able to find what specific question you had for it to be answered, so on and so forth. अब इतना टाइम हमेशा देने के लिए कहाँ है, या कई बार इतनी मेहनत और जद्दोजहद के बावजूद ये होता है कि नहीं मिलता है हमें जवाब, फिर भी नहीं मिलता है. तो ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी टेक्स्ट है उसको स्कैन कर लेना है, जो भी लिखा है उसको सिर्फ स्कैन कर लो, उसमें जो कीवर्ड्स हैं वो अपने आप हाईलाइट हो जाएंगे और नीचे पॉप करने लगेंगे. किसी को भी सिलेक्ट करना है आपको जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो, और उससे रिलेटेड वीडियोस, अगर 3D मॉडल है, सब अपने आप आ जाते हैं. अब जैसे आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ लिया, मुझे नहीं समझ आया, मुझे और डिटेल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपना ऐप जो है वो फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है, उसे मुझे सिर्फ कैमरा का एक्सेस देना है, दे दिया मैंने. अब मैं इसकी सिर्फ एक तस्वीर खींच लूँगी जो भी यहाँ पे लिखा है उसकी. The moment I take the picture, words are getting highlighted, the keywords are popping out. यहाँ पे इंडिया आ गया, डेवलपमेंट इन मेडिवल इंडिया, मनी, उसकी इमरजेंस, मोबिलिटी, ठीक है, इमरजेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन, ठीक है, ट्रेडिशंस. तो मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की
और उससे रिलेटेड वीडियोस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देख रहे हो कितना टाइम लगा, आई थिंक 30 सेकेंड्स में भी आई ऑलरेडी हैव अ वीडियो ओवर हियर एग्जैक्टली स्पेसिफिक टू द टॉपिक। इंडिया पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, व्हेन आई क्लिक ऑन इंडिया मेरे पास एक 3D मॉडल भी आ जाता है। तो अगर ऐसी कोई ज्योग्राफी वगैरह की चीज़ है, बिकॉज माई इंटरनेट इज़ अ लिटिल स्लो, इट्स नॉट वर्किंग वेरी वेल, यहाँ पे अपने आप इंडिया का एक 3D मॉडल आ जाएगा, उससे आप इंटरैक्ट कर पाओगे, खेल पाओगे। और उसके अलावा भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो ये नीचे यहाँ पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी। So this is how amazing it is. This is how simpler the process of learning is getting. This is how just in simple few clicks and just in some amount of time, my learning of various things can be enabled. So that is why I feel that everyone needs to have this application on their phone. So we'll start with a quick recap. हमारा पहला सेशन अर्लीस्ट मैप्स ऑफ इंडिया का था, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे मैप चेंज होता गया, कार्टोग्राफर कौन होता है, कार्टोग्राफी क्या होती है। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन। तो पुराने सेशन में हमने समझा कि हिंदुस्तान जो है वो हिस्टोरिकली रेफर किया जाता है उस रीजन को विच इंक्लूडेड पंजाब, ठीक है, and Haryana as well as the land between Ganga and Yamuna. So basically the northern plain portion kind of was referred to as Hindustan. Used politically for areas under the Delhi Sultanate. एक पॉइंट पे ऐसा भी होता है कि जो दिल्ली सल्तनत एक आपका रूल थी, जिसके बारे में इस ग्रेड में ही हमें और डिटेल में पढ़ना है, उनके अंडर जो रीजन, जो किंगडम था, उनकी जिस जगह पे कंट्रोल थी, उसको वो दिल्ली सल्तनत की तरह डिफाइन करते हैं, नॉट इंक्लूडिंग साउथ इंडिया। साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करते। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में और डिटेल में समझाया भी था कि बच्चे जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स, मुगल्स हो गए या फिर दिल्ली सल्तनत वाले लोग हो गए, जो भी बाहर से आए हैं, कोई भी ना सदर्न पोर्शन तक नहीं आया है, मैक्सिमम मध्य प्रदेश तक आए हैं लोग और वहीं तक पूरा किंगडम फॉर्म रहता है। मुगल्स ने सबसे बड़ा एम्पायर चलाया है, वो भी सदर्न पोर्शन को उन्होंने कभी टच नहीं किया। इंडिया didn't carry the same political and national connotations as today, यानी कि इंडिया सेम एरिया को, सेम चीज़ों को रेफर नहीं करता था। इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट सबको हम रेफर करते थे, और पॉलिटिकली या आइडेंटिकली जो इंडिया का मतलब आज है वो उस वक्त नहीं हुआ करता था। हर एक चीज़ का नाम के साथ, वक्त के साथ नाम और उसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बदलती गई है। Foreigner in medieval times meant any stranger not a part of specific society and culture. तो ये जो शब्द है फॉरेनर, आज हम किसी के लिए भी यूज करते हैं जो आउट ऑफ कंट्री का होता है, जो हु कम्स फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि कोई इंडिया के बाहर का है तो हम उसको फॉरेनर बोलेंगे, और कोई इंडिया के बाहर का है तो वो इंडियन को फॉरेनर बोलेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि आप किसी एक विलेज से हो, उस विलेज का जो भी नहीं है, कोई भी अनजान आदमी, वो आपके लिए एक फॉरेनर होता था, तो उसको अजनबी, परदेसी इन नामों से भी जानते थे। हिस्टोरियंस अब कहाँ से पता करते, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको हिस्ट्री के बारे में कहाँ से मिल रही है, हाउ आर वी लर्निंग अबाउट इट। सो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट एविडेंसेस फ्रॉम द पास्ट टू लर्न अबाउट इट, जैसे कि कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर and textual records. There are various things which have been utilized. Textual records become more prominent over time due to increased availability of paper. खास करके मेडिवल पीरियड में क्या होता है, पेपर की डिस्कवरी हो जाती है, पेपर अब आ जाता है हमारे पास। तो जब हमारे पास पेपर आ जाता है तो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो ईजिली एक्सेस कर सकते हो आप इसको, प्लस चीपर भी था। तो पहले क्या था बच्चे कि अगर पेपर है भी, पहले तो पेपर था भी नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह पहले पत्तों पे, पेड़ों की खालों पे, इन सब चीज़ों पे लिखी जाती थी। अब जब पेपर आया भी तो वो डिफ़िकल्ट हो गया उसका एक्सेस करना, पेपर को एक्सेस करना महंगा था, डिफ़िकल्ट था, तो हर किसी के हाथ में नहीं आता था, महंगा था। तो इस वजह से सिर्फ जो राजाओं के कोर्ट में लोग रहते थे वो सारे लोग, कुछ उसके बारे में एलीट लोग जो थे, एरिस्टोक्रेट्स जो थे, यानी कि जो रिच लोग थे, आप सोसाइटी के समझो, पढ़े लिखे लोग थे, रिच थे, जो कि ज़्यादा राजा, उनसे जुड़े उनके दोस्त, उनके परिवार, वो सारे लोग होते थे, इनके हाथ में ही पेपर आता था, तो पहले सिर्फ वो लिखते थे। बट जब पेपर सस्ता हो गया, आसानी से बिकने लग गया, सबको मिलने लग गया, तो सब लोग भर भर के बहुत सारी चीज़ें लिखने लग गए, और इसलिए बहुत सारा लिटरेरी अकाउंट हमें इस वक्त का मिलता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स, डिस्पाइट प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, पोज चैलेंजेस ड्यू टू वेरिएशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय स्क्राइब्स ओवर टाइम। तो अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की जाए
तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है, जो पुरानी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पुरानी किताबें हैं, पुराना सामान है लिखा हुआ, वो दे प्रोवाइड अस विथ गुड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स चैलेंज आता है, क्यों? पहले मैन्यूस्क्रिप्ट की एक कॉपी ऑथर ने लिखी, अब एक ही कॉपी लिख पाते थे वो, ये ओरिजिनल थी। अब ये या तो वक्त के साथ खराब हो जाती थी, या फिर लोग इसको स्क्राइब्स कौन होते हैं? जो हाथ से चीज़ों को लिखते हैं, कॉपी करते हैं, फिर उसको लिखते हैं। या फिर इसकी दूसरी कॉपी बनी, क्योंकि इसको खुद लिखने में 1 साल 2 साल जितना लगा, फिर उसको देख करके किसी ने कॉपी किया। अब उसने जब कॉपी किया तो उसने थोड़ा सा अपना एलिमेंट भी इसमें ऐड कर दिया, यानी कि कुछ शब्द बदल दिए, कुछ नरेटिव्स बदल दी। अब किसी ने इसके बाद इसको थर्ड कॉपी किया होगा, थर्ड कॉपी करने वाले ने, इंसान ने उसको और बदल दिया, और ऐसा करके बदलते गए, तो बाय द टाइम इट हैज लेट्स से रीच द 15th कॉपी और द 10th कॉपी, जो ओरिजिनल है उससे जो ये कॉपी थी वो बहुत डिफरेंट लगने लग जाती है, बहुत अलग लगने लग जाती है। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिस्पाइट प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चैलेंज पोज करती थी कि अगर आप ये 10th कॉपी पढ़ रहे हो तो ओरिजिनल तक जाना बहुत डिफिकल्ट होता था, या ऑथर वाकई क्या कहना चाहता है वो समझना बहुत डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो लोगों को मल्टीपल कॉपीज पढ़ के कंपेयर करना पड़ता था कि शायद ये कहना चाहता था ऑथर। Now, authors often revise their works, leading to multiple versions, some of which may remain undiscovered for centuries. तो कई बार ओरिजिनल कॉपी मिल जाती थी, कई बार नहीं मिलती थी, कई बार पता नहीं चलता था ओरिजिनल कॉपी कौन सी है, कई बार इंटरप्रिटेशन नहीं पता चल पाता था, या कई बार बहुत मेहनत और शिद्दत के बाद उस जगह पे पहुंच पाते थे लोग, ठीक है। तो चलो, you know the drill. We'll start the session with 3 questions from the topic जो हम पढ़ने वाले हैं। आप देख लो, आपको अगर कुछ पता है, नहीं पता है, कितना पता है। जो आंसर कर पाओगे अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे स्ट्रेस नहीं लेना है। What we have to do is after finishing up the session, come back to these 3 questions quickly in a minute, see do we know the answers to them now or not. Okay? तो पर्शियन व्हील क्या होता है? इरिगेशन टूल, पार्ट ऑफ अ कार, एक पर्शियन टॉय होता है, या फिर कैरेज होता है? पर्शियन व्हील आपने वैसे कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, ये थोड़ा रेलेवेंट है हमारे लिए। और बच्चों नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, हम 3 सवाल करेंगे, अगर तीनों ही गलत हो जाए तो भी टेंशन नहीं लेना है। What is Persian wheel? Irrigation tool, part of a car, Persian toy, or a carriage? तो ये इरिगेशन के लिए यूज किया जाने वाला एक टूल था, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस था। इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में क्या होता है। जाति क्या होती है? पेजेंट फार्मर, सबकास्ट बेस्ड ऑन हेरिटेज एंड ऑक्यूपेशन, peasant who raised cattle, or none of the above. What is a jati?
बेटा जाति हमें पता है कि इन जनरल जो सिस्टम होता है कास्ट का, उसके लिए हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने सुना है कहीं तो ठीक है, नहीं सुना है तो विल लर्न मोर अबाउट इट। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन, हु वाज गियाजुद्दीन बलबन? सुल्तान ऑफ दिल्ली, सुल्तान ऑफ चेन्नई और सुल्तान ऑफ लाइक गवर्नर ऑफ श्रीलंका? So we'll be learning about him as well. That's why it's been given over here. Who was Ghiaz-ud-Din Balban? It was Sultan of Delhi, है ना? चलो. So moving on now, we're going to talk about, we all watch television, use mobile phones, internet and more, but can you imagine your life without these? Obviously not. मतलब भैया मुझसे अगर कह दिया जाए कि मैं स्विगी से ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ, ये सिर्फ सोचकर मुझे इतनी मौत आने लग जाएगी। तो हमारी तो लाइफ हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी से घिरी पड़ी है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी तरह की डिपेंडेंसीज बन चुकी हैं, वो इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो चुकी है हमारी लाइफ में। अब कोई कह दे कि इसको हटा दे रहे हैं, तुम पीछे चले जाओ वक्त में, नहीं हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। सो टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस, इन्होंने हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी है। एंड ऑब्वियसली ये एक रात में नहीं हुआ, इट हैज़ बीन अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आज से 15 साल पहले जब मैं स्कूल में थी, मेरी ज़िंदगी बहुत अलग थी रिलेटिवली एंड कंपेयर टू व्हाट यू हैव। यूट्यूब and these musical applications, the games that you have, it was very different. ये सब exist नहीं किया करता था, ये हमारी लाइफ का इतना ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं था। So obviously overnight ये चेंज नहीं आया है, काफ़ी साल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कर करके ये शिफ्ट आता गया, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते गए ये, जहाँ पे हम इस फ़ोन से इस लैंडलाइन से इस फ़ोन तक पहुँचते गए। Now when the wheel was developed in ancient times, जब चक्का बनाया गया पहली बार, पहले लोग पैदल पैदल चलते थे, फिर घोड़ों पर चलते थे, गधों पर चलते थे, जानवरों की मदद से मतलब मूव करते थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें चक्का बनाना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह एक व्हीकल उसके ऊपर डाल करके मूव करा सके, ऐसा कुछ करना चाहिए। So when the wheel was developed in ancient times, it changed the life of humans. इंसानों की ज़िंदगी पूरी तरीके से फिर बदल गई। Many such inventions have greatly influenced the human civilization, है ना? ऐसे कई revolutions हुए। इंडस्ट्रीज जब आई तो रेवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट जब आया तो रेवोल्यूशन हुआ, आईटी जब आया तो रेवोल्यूशन हुआ। एक बड़ा शिफ्ट आता है और सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट द इन्वेंशंस इन मेडिवल टाइम्स? लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले टेक्नोलॉजी उस वक्त क्या है? अब तुम्हें टेक्नोलॉजी से ना दिमाग में मशीन, बोर्ड और टीवी और ये सब याद आएगा? नहीं बेटा, ये सब कुछ नहीं था। मेडिवल टाइम्स की बात कर रहे हैं हम यार, 1100 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। 1100s 1200s 1000 वाला ईयर, 900 वाला ईयर। उस वक्त ये सब कुछ नहीं था, ये सोचना भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो द स्टडी ऑफ द 1000 years स्पैनिंग 700 and 1750 इज अ चैलेंज, क्योंकि 1750 के अराउंड बेसिकली हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से फिर शुरू होती है। तो ये 1000 सालों की जब हम स्टडी करते हैं, 700 से लेके 1700 ईस्वी तक, ठीक है, एडी तक, बहुत कुछ बदला है, बहुत सारे शिफ्ट्स आए हैं। तो इसको बिल्कुल एक बार में ऐसे लिस्ट कर पाना भी डिफिकल्ट है और हाईलाइट समझ पाना भी डिफिकल्ट है। और 1000 सालों में हमारे ज़िंदगी में तो पिछले 100 सालों में इतने बड़े बड़े, 200 सालों में इतने बड़े बड़े शिफ्ट्स आ गए, ये तो हम 1000 साल की बात कर रहे हैं। जो स्केल्स है और वेराइटी है डेवलपमेंट के, वो इस पीरियड में जो हुए हैं काफ़ी बड़े हैं,
तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हुआ है बड़ा काम। ऐसा नहीं है कि अभी हम मॉडर्न एज में कुछ जो है बिल्कुल रॉक कर रहे हैं, उस वक्त भी रॉक स्टार्स थे। At different moments in this period, new technologies made their appearances. So we see that there were shifts. कुछ नया नया अनोखा आ रहा था, लोगों की ज़िंदगी आसान कर रहा था, नए डिवाइसेस बन रहे थे, कुछ नए शिफ्ट्स आ रहे थे, कुछ रिवोल्यूशंस हो रहे थे। इनमें से कुछ डेवलपमेंट्स जिनकी बात करें हम, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस, पटेटोज, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफी। तो इसको थोड़ा एक एक करके समझेंगे और इन डिटेल्स में जाएंगे। आई एम गोना एक्सप्लेन दिस टू यू। सो सबसे पहले बात करते हैं पर्शियन व्हील का। तो बच्चे, एक चक्का पहले क्या था, लोग अपने आप से पानी ड्रॉ करते थे और पानी को लिफ्ट करते थे। अब ये बहुत मेहनत लगता था, फिर लोगों ने समझा कि एक लिवर वाला, जो साइंस में लिवर का कॉन्सेप्ट होता है, वो लगाते हैं। यहाँ पे एक चक्का लगाते हैं, उसके ऊपर रस्सी डालेंगे और फिर हमारे ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है वो सारा काम चक्का कर देगा और अपने आप रेगुलेट करके इधर उधर पानी हम पहुंचा पाएंगे। तो खेती बाड़ी में पर्शियन व्हील जो है वो फार्मर्स की जिंदगी बहुत आसान बना देती है। एंड लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द पीपल एट दिस पॉइंट वो फार्मर्स ओनली, ठीक है, एवरीवेयर अराउंड, नॉट जस्ट इन इंडिया, हर जगह कहीं की भी बात कर लो, प्राइमरी जो काम जो है सब लोग कर रहे थे वो फार्मिंग का ही कर रहे थे, क्योंकि और ज्यादा जॉब्स, गिने चुने जॉब्स होते थे बच्चे, 4 5 6 7 जॉब्स होते थे, वही सब अलग अलग तरह के काम लोग ज्यादा कर रहे होते थे। तो ये पर्शियन व्हील का जो इरिगेशन में एक आना है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, ये पहले वीविंग जो है धागे से कपड़ा बनाना, उसको वीव करना मैनुअली किया जाता। तुम सोचो कितना वक्त लगता होगा, कितना टैक्सिंग और टीडियस काम होता होगा ये, और लोग करते थे क्योंकि कपड़े चाहिए थे लोगों को। बट जब ये स्पिनिंग व्हील आता है तो वो धागे को स्पिन करना, उससे वीविंग कर पाना बहुत आसान कर देता है लाइफ को, और जितना वक्त ह्यूमन मैनुअली करने में लगाते थे इसको, उससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। अभी सोचो स्पिनिंग व्हील तो अभी कितना स्लो लगेगा, बट सोचो जब इंसान उसको हाथ से किया करते थे, उनके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग रही होगी इस व्हील का आना। और फिर ये व्हील जो है वो मशीन, स्पिनिंग जेनी वगैरह आप पढ़ोगे आगे, उनसे रिप्लेस हो जाएगा, तो मशीनों से और रिप्लेस हो जाएगा। बट दिस व्हील इन इटसेल्फ, द स्पिनिंग व्हील इन इटसेल्फ वाज अ ह्यूज थिंग। फायर आर्म्स, बंदूकों का बनना, जहां हम पहले आग के गोले, एक आयरन के गोले पे एक कपड़ा केरोसिन में लपेट के लगाते थे, उसमें आग लगाते थे और उसको दूर फेंकते थे, और हमें एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता था एज ह्यूमंस। वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गया और हम बंदूकें बनाने लग गए। रेंज उसकी कम थी, शायद 1 मीटर 2 मीटर तक पहुंच पाए, लेकिन वहां तक भी पहुंच पा रही है, और आप बंदूक यहाँ से चला रहे हो और किसी को गोली लग जा रही है। आपके लिए वॉर में ये कितना बड़ा शिफ्ट था, तलवारों से लड़ना और यू नो all of these things which was used back at that time, arrow का यूज करना, ये सब एकदम से चेंज होने वाला था। लोग अब बंदूकों पे शिफ्ट होने वाले थे, and that was going to completely transform people's lives. So it was a huge invention. Now very interestingly, हमारे पूर्वजों को आलू, टमाटर, कॉर्न, चाय, ये सब नहीं पता था। आज से 500 साल पहले भी नहीं पता था। 500 years, not 500, 700, आज से 700 साल पहले भी नहीं पता था। ये सब ना अमेरिका में ग्रो कर रहा था। You'll read about this in class 10th in more detail. ये सब ग्रो कर रहा था अमेरिका में। अमेरिकन्स वहाँ पे सूटेबल तरीके से, जैसे हम यहाँ पे चावल, गेहूँ, ये सब, बारले, ये सब ग्रो करके बड़ा खुश थे। वो वहाँ पे आलू उगा रहे थे, कॉर्न उगा रहे थे, मेज़ है ना, भुट्टे खा रहे थे। टी तो था, टी कॉफ़ी धीरे धीरे स्प्रेड हुआ है। टी ज़्यादातर कहते हैं चाइना की तरफ से आया है, और कुछ कहते हैं इंडिया और इधर एशियन रीजन। कॉफ़ी भी आपका येमेन और इन सारी तरफ से है। बट इन जनरल पटेटोज, कॉर्न, टमेटोज फॉर दैट मैटर, अमेरिकन्स जब तक डिस्कवर नहीं हुए थे नहीं हुआ था। एंड देन क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1500s डिड द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तब जाकर के लोगों को पता चला कि अरे हम आलू भी उगा सकते हैं यार, हम आलू खा सकते हैं, और कितना सस्ता और अच्छा सस्ता उपाय है। तो आप सोचो कितनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी इन सब डिस्कवरीज के बाद बदल गई होगी। फ्रेंच फ्राइज के बिना कैन यू इमेजिन योर लाइफ। सो अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की और भी ज़्यादा, तो देयर वर ग्रुप्स ऑफ पीपल जो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंसेस में ट्रैवल करने लगे। एक और डेवलपमेंट मैं बताती हूँ आपको, प्रिंटिंग जो है 500s के अराउंड चाइना में शुरू हो गया था। अराउंड 768 AD जापान पहुँचता है। जापान, कोरिया, चाइना, इन सारे जगहों पे हो रहा होता है।
ऐसा ऐसा करके स्प्रेड करने लग जाता है। 1295 में मार्को पोलो नाम का एक इंसान, एक ट्रैवलर यूरोप जाता है, यूरोप से चाइना जाता है और कहता है कि ओ भैया तुम प्रिंट कर रहे हो। और मशीनों से प्रिंट नहीं हो रहा था बाय द वे, प्रिंट हो रहा था हाथों से, मतलब वुड के ऊपर कुछ लिख के और उसको मल्टीपल पेपर्स पे छाप देते थे। आपने बचपन में देखा होगा कि मेहंदी लगती है, एक मोल्ड होता है, उसको मेहंदी के कलर में डालते हैं और वो ट्रेस कर देते हैं और ऐसे क्या फटाफट वो मेहंदी लगाते हैं। सेम सिस्टम हो रहा था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसा। बट उससे ही वाज सो इम्प्रेस दैट ही टुक इट टू यूरोप, और फिर यूरोप में 200 साल के बाद 1440 के अराउंड प्रिंट का मशीन बना दिया जाता है। तो ऐसे करके डेवलपमेंट्स होती गई हैं और ऐसे ऐसे कर करके लोग, मतलब, और डेवलपमेंट्स होती गई हैं क्यों? क्योंकि पीपल वर ट्रैवलिंग। कोई बुद्धिस्ट मंक थे जो जापान से चाइना गए, तो उन्होंने वहां से समझा, तो आकर के 200 साल बाद प्रिंटिंग जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर दी जापान में। उसके बाद 500 साल बाद जब यूरोप से कोई गया चाइना, तो उसने रियलाइज किया कि ये सिस्टम चलता है, तो उसने वहां कर दी, है ना। तो पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो केम टू सब कॉन्टिनेंट अलॉन्ग विथ मेनी न्यू इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो हमारे लोग जब जाते थे कहीं, तो वहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीज़ सिखाते थे, और बाहर से लोग आते थे तो वो हमसे बहुत कुछ सीखते थे। एंड दिस इज अ टाइम वेयर इंडिया वाज रियली प्रॉस्परस। प्री मॉडर्न एरा में अगर आप देखोगे तो हमारा सिल्क रूट रहा करता था, यानी कि चाइना और इंडिया से एक रास्ता जाया करता था, लैंड से भी और सी से भी, जो यूरोप और अफ्रीका से हमें कनेक्ट करता था। हमारे पास इतने अच्छे वंडरफुल चीज़ें होती थी जिससे हम ट्रेड करते थे और हम बहुत रिच थे, बहुत फ्लरिश थे। वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर है, दुनिया के जो व्यापार का सेंटर है, वो चाइना और इंडिया में हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के बाद वो शिफ्ट हो गया, वहाँ नहीं जाते। पॉइंट ये है कि ये जब रास्ता बना तो उसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करने लग गए। लोग रिलीजियस इनलाइटमेंट के लिए ट्रैवल करने लग गए, लोग ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल करने लग गए, ट्रेड के लिए ट्रैवल करने लग गए, अपने देश से भाग जाने के लिए ट्रैवल करने लग गए, या उनको वो सिस्टम अच्छा नहीं लगता था, फ्रीडम चाहिए था, बेटर डेवलप्ड जगह चाहिए थी, तो ट्रैवल करने लग गए। फॉर डिफरेंट पर्पसेस पीपल वर ट्रैवलिंग, एंड व्हेन दे वर ट्रैवलिंग, ट्रैवल के साथ कल्चरल एक्सचेंज होता था, ट्रेड के साथ कल्चरल एक्सचेंज होता था। तो हमने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखाया। कई जगह हमारे लोग गए जाके सिखा रहे थे, कई जगह से लोग आए, उन्होंने देखा और सीखा। बट एट द सेम टाइम जो बाहर से लोग आए उन्होंने भी हमको बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि ये जो मीनार्स का कंस्ट्रक्शन है, टुम्स का कंस्ट्रक्शन है, ये सब हमें नहीं, हमारा स्टाइल नहीं है। ये ग्रीक स्टाइल या आपका मिडिल ईस्टर्न स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो उनसे हमने वो सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। नए फूड्स और बेवरेजेस जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में आने लग गए। आलू, मकई, भुट्टा, है ना, मेज, चिलीज, मिर्च, जिनको तीखा पसंद है, सोचो उनकी ज़िंदगी इसके पहले कैसी रही होगी। चाय, कॉफ़ी, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज, क्रॉप्स, ये सब धीरे धीरे लोगों के साथ, उनके आइडियाज़ के साथ आती हैं। तो बेटा बहुत सिंपल है, आपको लगेगा कैसे आती है। तो देखो, जब ट्रेड हो रहा था, ट्रेडर्स जब वहाँ गए, उनको कुछ अच्छा लगा तो वो ट्रेड के सामान के साथ थोड़ा सा वहाँ से आलू लेके आ गए मान लो, या मिर्चियाँ लेकर के आ गए। सिमिलरली लोग इन चीज़ों में भी ट्रेड करने लग गए, तो या फिर थोड़ा सा कैरी कर लिया करते थे, ऐसे करके एक्सचेंज होने लग गया। या अपने यहाँ से जब आप एज अ ट्रैवलर भी ट्रैवल करते हो तो उस वक्त लोग बहुत सारा खाना लेके ट्रैवल किया करते थे। ये होटल का सिस्टम ये सब नहीं एग्जिस्ट किया करता था। आप फिगर आउट नहीं कर सकते थे आपको कहाँ रहना है, आप कहाँ पहुँचोगे, आपके पास कितना खाना आपको लेके चलना होता था। तो लोग ये सब खाना एक जगह से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते थे, तो भी वहाँ पे लोग को अवेयरनेस जागती थी कि अरे ये क्या खा रहे हो, ये दिखाओ हमें, हमने तो नहीं देखा है पहले। तो ऐसे करके जो नई टेक्नोलॉजीज थी वो एक जगह से उसका न्यूज़, उन सारी चीज़ों का डिटेल, किसी ने स्पिनिंग व्हील कहीं देखा तो वो ले जाकर ले गया, या उससे इंस्पायर होकर के दूसरी जगह जाकर बनाया। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गया, ट्रेड, ट्रैवल, इन सारी चीज़ों की वजह से, खाने को लेके, टेक्नोलॉजी को लेकर के। एंड इट केम अलॉन्ग विथ पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल। तो जो लोग आते थे आइडिया लेके, अपना कल्चर लेके, और ये सारी नई इनोवेशंस और नया खाना ये सब लेके भी आते थे। इसका रिजल्ट हम देखते हैं इन अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। तो क्योंकि अब जो है आना जाना, अब इसके पहले जो एंशिएंट इंडिया था बेटा, उसमें इतना ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते थे। मेडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग, अलग अलग देशों में ग्लोबलाइजेशन जो है, अलग अलग देशों का कनेक्टेड होना, ये यहाँ से ही शुरू हो गया था। टेक्नोलॉजी कम होने के बावजूद जो ही टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आ रहा था। तो जब इसीलिए हम देखते हैं कि लोग इधर से उधर और उधर से इधर मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह,
इसकी वजह से इकोनॉमी बहुत बदल जाती है, यानी कि पैसे का फ्लो कहाँ से कैसा हो रहा है। कोई जगह ट्रेड की वजह से बहुत रिच हो जाती है, कोई डिपेंडेंट हो जाती है, उनका पॉलिटिक्स डिफरेंट हो जाता है, कहीं से कोई राजा आ जाएगा। अब कोई जगह बहुत प्रॉस्परस थी, बहुत रिच थी, जैसे इंडिया, सोने की चिड़िया बोला जाता था उसको, तो इसके बारे में किसी किंगडम के रूलर ने सुना, उसे बड़ा अट्रैक्टिव लगा, उसे लगा हम इंडिया पे कब्जा करेंगे, तो वो पॉलिटिकल सिनेरियोज भी बहुत चेंज करा था। और जब इतना बदलाव आता है तो आपकी सोसाइटी में कल्चरल एक्सचेंज आता है, उसकी वजह से सोसाइटी इन जनरल चेंज होती है, और ये सारे शिफ्ट्स हम यहाँ पे नोटिस करने लग जाते हैं। So let's answer the very first question. Dash, dash, dash and dash was some of the new crops introduced in the subcontinent during the 7th to 17th century. So this is pretty simple. आपके लिए मैंने हिंट भी दे दिया है। So बच्चों, there were potatoes, there were corn, there was corn, there was chili, tea, coffee. चिली यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो हम टी और कॉफ़ी लगा लेंगे। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास नहीं थी, बाहर से हम लेकर के आ रहे थे, है ना। ये हमारे पूर्वजों को नसीब नहीं हुई थी। सो टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ मोबिलिटी, ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे बहुत मोबिलिटी थी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मूवमेंट। वी सॉ लाइक अ लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग, पीपल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, लॉट ऑफ ट्रेड हैपनिंग, पीपल मूविंग, गुड्स मूविंग, कमोडिटीज मूविंग. Groups of people traveled long distances in search of opportunities. People wanted to explore, people wanted to see. गरीबी है तो उससे भागने के लिए, जैसे यूरोप में बहुत गरीबी थी इस वक्त, तो लोग उससे भागने के लिए दूसरे जगह जाते थे, ठीक है, या फिर जॉब के सर्च में एक किंगडम से दूसरे किंगडम, तो लोग बहुत ज़्यादा तलाशते थे, या कुछ नया ट्रेड मिल जाए, या कुछ नई एक्सप्लोरेशन, कल्चरल का एक्सप्लोरेशन, रिलीजन का एक्सप्लोरेशन. सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर द पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. सब कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने आपको कल बताया था, इंडिया और सेम कल्चर, भाषा लगभग बोलने वाले, सेम जैसे दिखने वाले जो हमारे सारे देश हैं आसपास, वो सारे देशों को जब आप कंबाइन करते हो तो उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, तिब्बत एंड योर नेपाल एंड बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स एंड पाकिस्तान, ये पूरा लैंड पहले एक ही था, उसको सब कॉन्टिनेंट की तरह रेफर करते थे, क्योंकि एक देश भी नहीं था, देश से बड़ा था, और कॉन्टिनेंट जितना बड़ा भी नहीं है, तो उसको सब कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पे क्या है कि चाइना भी था और इंडिया भी था, और ये दोनों ही देश जो हैं कपड़े, कॉटन, यूटेंसिल्स, सिल्क, स्पाइसेस बहुत प्रोड्यूस कर रहे थे और भर भर के ट्रेड कर रहे थे. तो ये बहुत सारा सामान भेजते थे यूरोप, अफ्रीका, और वहाँ से बहुत ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स आते थे हमारे पास. तो जब आप इतना ट्रेड कर रहे हो और उसके बदले इतने सारे कॉइन्स, उतने सारे पैसे ला रहे हो, पैसे आप ऑब्वियसली प्रॉफिट के साथ लाते हो, आप इतना प्रॉफिट बना रहे हो, तो आप रिच होते जा रहे हो. यू आर ओनली ग्रोइंग रिचर एंड रिचर एवरी डे, यू आर ओनली ग्रोइंग प्रॉस्परस एवरी डे. तो ये सारे देश में डेवलपमेंट, ये सारे देश में प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस बहुत देखने को मिलती थी, आर्किटेक्चर में, लोगों की लाइफस्टाइल में, कपड़ों में, इन जनरल सोसाइटी में.
और जब भी ऐसा होता है तो पीपल गेट अट्रैक्टेड अ लॉट, जैसे कि चाइना, जैसे कि यूएस इन प्रेजेंट, European countries, a lot of European countries, they are well-developed nations. Why? Because they are prosperous. On an average, जो लोग हैं वहाँ ज़्यादा पैसे बनाते हैं, तो बहुत सारा तामझाम आपको देखने को मिलता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है. तो कई सारे लोग दूसरी जगह से वहाँ जाते हैं कि अरे ये जगह रिच है, ये जगह इतनी बड़ी है, इतना डेवलप्ड है, हमें नौकरी मिलेगा, हमें यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी, या हमारे लिए कुछ जगह बना देगा, हमें कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हमें कुछ तो मिल ही जाएगा. So with this idea, people start moving to these places, and that's what exactly happened over here also. People started moving to Indian subcontinent. मतलब आप समझो कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये पूरा वाला जो रीजन था ना, इधर लोग आने लग गए अब काम, अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीज़ों की तलाश में. Groups of people were forming at the beginning of the 8th century and many groups became important. तो अभी मैं आपको सेंचुरी का कॉन्सेप्ट एक बार बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो. बेटा जैसे 1 to 100 जो है वो फर्स्ट सेंचुरी हुई है ना, तो अगर आप 110 ईयर की बात कर रही हूँ मैं, तो ये आपको लगेगा कि अरे ये तो फर्स्ट सेंचुरी का हिस्सा है क्योंकि इसमें 100 आ रहा है पहले, बट ऐसा नहीं है, ये सेकेंड सेंचुरी का हिस्सा होगा. सो बेसिकली जो आखिरी साल होता है वो वाले नंबर की सेंचुरी चल रही होती है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब 101 से 200 ईयर तक सेकेंड सेंचुरी है. तो आपकी अगर 17th सेंचुरी में बोल रही हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, 1601 से 1700 तक 17th सेंचुरी चल रही है. यानी कि 1617, 1659, 1675, ये सब 17th सेंचुरी का हिस्सा बनेगी, ना कि 16th सेंचुरी का. तो आप ये वाला नंबर देख के सेंचुरी डिसाइड नहीं करोगे, ये समझ लो कि ये कौन सा वाला 100 फिनिश करेगा, वो वाली सेंचुरी चल रही है. तो जब हम कह रहे हैं 8th सेंचुरी, तो हमारा मतलब है 701 से लेकर के 800 साल तक के बीच में कई सारे ग्रुप्स जो हैं फॉर्म होते हैं. मल्टीपल ग्रुप्स गेट फॉर्म्ड, राइट. और अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म होने का क्या मतलब है, लोग अब गुटबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप्स बना रहे हैं, शायद मिलिटेंट बनने के लिए या किंगडम बनाने के लिए. और ये इनमें से कई ग्रुप्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट भी हैं. यानी कुछ लोग अब आकर के किंगडम्स फॉर्म करेंगे, अब अपने आप अपना रूल स्टैब्लिश करेंगे. So one such important group was of Rajputs. इनमें से एक ऐसा important group कौन सा है, राजपूत्स का. राजपूत का लिटरल मतलब ही होता है son of king. राज मीन्स राजा, पूत मीन्स पुत्र. पुत्र इन हिंदी क्या, हिंदी का वर्ड है पुत्र, शुद्ध हिंदी का, जिसका मतलब है सन. तो राजपूत मीन्स son of king. So they started forming groups now. इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ग्रुप्स फॉर्म करना शुरू कर दिया. Rajputs were generally a group of warriors who were Kshatriyas by caste. कास्ट सिस्टम हमने पढ़ा है, समझा हुआ है. आपके ब्राह्मण्स होते थे, क्षत्रियाज होते थे, वैश्याज होते थे, शूद्राज होते थे, एंड देन देयर वर द दलित्स, द अनटचेबल्स. तो क्षत्रिय ग्रुप जो वॉरियर ग्रुप था, जो सोल्जर्स का ग्रुप था, क्षत्रिय में कौन फॉल करता था, जो भी फाइटर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, जो प्रोटेक्टर्स आर्मी वाले लोग थे उस वक्त के, वो क्षत्रियाज में क्लब किए जाते थे. तो राजपूत्स वर जनरली अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु वर क्षत्रियाज बाय कास्ट. रूलर्स, चीफटेन्स, सोल्जर्स एंड कमांडर्स, ये सब राजपूत का हिस्सा थे. तो ऐसा नहीं है कि जैसे ब्राह्मण्स जो है वो प्रीस्ट, पढ़ने लिखने वाले, गॉड की सेवा करने वाले, टीचर्स, ये सारे लोग ब्राह्मण्स में फॉल करते थे. लेकिन आपका ऐसा है कि राजा भी क्षत्रिय है, और जो सोल्जर है वो भी क्षत्रिय है, जो मिनिस्टर है वो भी क्षत्रिय है, जो उस आर्मी का कमांडर है वो भी क्षत्रिय है. ये सब जो है क्षत्रियास में फॉल करने लग गए थे. एक्सट्रीम करेज एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी आर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत्स बाय पोएट्स एंड बार्ड्स. सो बेसिकली ऐसा है, you might have seen in a lot of movies also, where if you would have seen some Rajput king, they always talk about, I will get myself killed but not be disloyal to anyone, not break anybody's trust, and my identity and my self respect is the most important thing. I will not bend in front of anyone. मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं. ये कुछ आइडियाज थे जो राजपूत्स अपने आप से एसोसिएट करते थे. बहुत गुरूर एंड अ लॉट ऑफ प्राइड, लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, लॉयल्टी. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहा जाता है कि उनके एट्रीब्यूट्स थे, वर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजपूत्स. दिस इज हाउ दे आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज. दीज वर द थिंग्स दैट दे यूज्ड टू
डिफाइन देमसेल्व्स एज। तो इस तरीके से वो डिफाइन करते थे, और जो पोएट्स हैं या जो पुरानी बातें लिखते हैं बार्ड्स हैं, वो भी इसी तरीके से राजपूत्स को डिफाइन करते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि जो कभी ना झुका वो राजपूत, जिस समथिंग इन पद्मावत ऑल्सो शाहिद कपूर इफ आई एम नॉट रॉन्ग हैज सेड। तो जो जिसमें बहुत करेज है, जो डरेगा नहीं, लड़ेगा हमेशा, किसी को धोखा नहीं देगा, अपनी शान के लिए गला कटवा लेगा, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, सामने वाले दुश्मन के सामने डर के मारे गिव अप नहीं कर देगा, ये करेज है। ये सब तरीके से राजपूत्स को डिफाइन किया जाता था, और कहीं ना कहीं एक इमेज भी बन गया कि राजा की जो परसेप्शन बन गई वो ऐसे राजपूत के कैटेगरीज से डिफाइन होने लग जाती है, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरियस ग्रुप्स, तो हमें समझ आता है कि राजपूत एक ग्रुप था जो बनकर आता है, बट मेडिवल इंडिया में और भी ग्रुप्स बन रहे थे इस वक्त, जैसे कि मराठास, तो उनमें आप देखोगे पेशवा वगैरह आते हैं, सिख्स आते हैं, जट्स आते हैं, अहोम्स आते हैं, एंड ऑफ कोर्स कायस्थास। अहोम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और तो मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थास, ये सब आने लग जाते हैं। ये कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे, ठीक है। तो अब ये ग्रुप्स के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं हैबिटेट चेंज का। ओवरऑल जो एनवायरनमेंट चेंज था वो क्या हुआ और कैसे हुआ। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो हमने एंशिएंट इंडिया के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा है क्लास 6 में, हमने समझा कि लोग रिवर्स के इन एंड अराउंड सेटल होने लग गए थे, जंगलों के पास, वहाँ जानवर होते थे, पेड़ होते थे, तो उससे गैदरर्स वगैरह अपना खाना पीना, अपनी सर्वाइवल का टेक केयर करते थे। बट ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट अदर थिंग्स ऑल्सो स्टार्टेड हैपनिंग वाज that they started understanding that oh, you can also do cultivation, you can also do farming, and then civilization started happening. Harappan civilization, Indus Valley civilization, Magad civilization, और भी जगह जगह पे लोग सिविलाइज होने लग गए, पेड़ पौधे ग्रो करने लगे, कल्टिवेशन करने लग गए, ट्रेडिंग होने लग गई, सेटलमेंट्स होने लग गया। अब नोमैडिक लाइफ नहीं चल रही थी। अब जब ये पूरा शिफ्ट आ गया है और लोग हर जगह सेट हो गए, अब किंगडम का सिस्टम चालू हो गया है। एक राजा है, उसकी प्रजा है, उस वहाँ ट्रेड भी चलेगा, लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन भी रन करेंगे। अब लाइवलीहुड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खाने के चक्कर में, सेटल होने के चक्कर में इधर उधर घूमते नहीं रहना है। तो जो ये सिस्टम चलता है जब किंगडम सेट होने लग जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अब उनको समझ आता है कि इतने लोग आ गए हैं और राजा की जिम्मेदारी है, एक गवर्नमेंट आ जाता है, वो ये जिम्मेदारी लेता है कि लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करना, सबके लिए इनफ फूड ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो अब फूड ग्रो कहाँ से करेंगे? पहले तो हर जगह पेड़ पौधे जंगल भरे रहते थे, तो जगह खाली करने की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले तो जो नदियाँ बह रही थी उसके आसपास लोगों ने खेती कर ली, और उस खेती से कितना निकलेगा? पहले लोग सिर्फ अपने लिए करते थे, अब बड़े स्केल में खेती करनी थी कि आप जो है पूरी सोसाइटी का, पूरे किंगडम के डिमांड को मीट कर सको, एक शहर के डिमांड को मीट कर सको। 1000 लोग, 1500, 2000 लोगों के लिए खाना बनाना है, ग्रो करना है, कल्टिवेट करना है। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा जंगलों को काटकर जमीन खाली करना शुरू की कि अब ये खेती होगी, यहाँ पे ये खेत बनेंगे। व्हाट विल हैपन ओवर हियर? दिस विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एग्रीकल्चरल फील्ड्स। सो मेनी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, तो कई सारे लोग जो स्पेशली ट्राइबल्स है ना, ट्राइबल्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको हम आदिवासी वनवासी कहते हैं। ट्राइबल्स का सिस्टम ये होता है बच्चे, दैट दे वर्शिप नेचर, सो दे वांट टू स्टे क्लोज टू द नेचर। वो नेचर की वर्शिप करते हैं, हर एक चीज़ की, पेड़ पौधे, जानवर, सन, मून, लैंड, एयर, वाटर, एवरीथिंग। उन्हें हर एक चीज़ ब्लेसिंग की तरह लेते हैं, जो नेचर प्रोवाइड करता है, एक गिफ्ट की तरह लेते हैं, और उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके जितने पास उसके पास रहने की कोशिश करते हैं बाय वर्शिपिंग देम एंड स्टेइंग इन एंड अराउंड। तो वो जंगलों में ज़्यादा रहा करते थे, और उनका जो सिस्टम भी था लाइवलीहुड रन करने का, वो ये था कि वो ज़्यादातर पेड़ पौधों से मिली चीज़ों पे, जानवरों से मिली चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जंगलों में रहते थे। अब जंगल क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कटना शुरू हुआ है। मेडिवल टाइम से ही जंगल कटना शुरू हो गया, ठीक है। इनको क्या ज़रूरत पड़ गई, अब जंगल कट रहा है, तो उनको लगा, पहले तो एक चीज़ की फार्मिंग के बारे में सीखा भी, दूसरा अपना हैबिटेट चेंज हो रहा है, अपना घर लूज हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि सारे जंगल कट गए, लेकिन जहाँ भी रहते थे अगर वो कटा तो वो भी गांव की तरफ मूव कर जाते थे, और फिर फार्मर की ज़िंदगी अपना लेते थे कि चलो ठीक है, हम भी खेती बाड़ी करेंगे। तो कुछ या तो माइग्रेट कर गए, दूसरे जंगलों में चले गए, जो वहाँ रह गए आसपास के गाँव में जाकर फार्मर बन जाते हैं। Some people had very fertile land and also kept cattle. तो जिनके पास बड़ी अच्छी ज़मीन मिली, बड़ी उपजाऊ ज़मीन, फर्टाइल लैंड मिली, वो बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन करते थे, कैटल्स भी रख लेते थे ताकि उनकी कल्टिवेशन अच्छी हो सके।
कुछ लोगों के पास फर्टाइल लैंड नहीं था या ऐसी ज़मीन ही नहीं थी जिस पे वो खेती कर सके, तो उन्होंने दूसरे ऑप्शंस चुनना शुरू किए, जैसे कि क्राफ्ट या फिर आर्टिजन बन गए, चीज़ें बनाने लग गए, स्कल्पचर्स बनाने लग गए, सजावट की चीज़ें, इंडियन जो हमारा बेसिक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स होता है, जूट से या अलग अलग चीज़ों से, ड्राइंग की बात कर लो, स्कल्पचर की बात कर लो, मोल्ड्स की बात कर लो, और ये राजा और उस समय के एलिट्स बहुत खरीदते भी थे, उनके पैलेसेस वगैरह में बहुत लगे होते थे। while others were having less fertile lands, तो कुछ लोग आर्टिशन बन जाते हैं, कुछ लोग जिनकी बंजर ज़मीन है वो नहीं कर रहे हैं कुछ, वो कुछ और चीज़ें फिगर आउट करते हैं, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, और कुछ फार्मर्स बन जाते हैं जिनकी फर्टाइल लैंड है वो सेट होकर के फार्मिंग करते हैं, ठीक है। Now name the groups who asserted their political importance during the period between 700 to 1750. Maratha Sikhs, Jats, Kashmiri and Kshatriya. Maratha Sikhs, Jats, Muslims and Shudras. Maratha Sikhs, Jats, Muslims and Punjabi. और Maratha Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas. So it was the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas who had started developing. Rajputs आते हैं बट उनके साथ साथ मराठास और ये सारी ग्रुप्स भी आती हैं जो इंपॉर्टेंट रहती हैं इक्वली, और नया नया मेडिवल इंडिया में डेवलप करने लग जाती हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, now these new peasants were influenced by regional markets, the chieftains, the priests, monasteries and the temples. बच्चे देखो, कभी भी कल्टिवेशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा फार्मर्स की डिमांड पे डिपेंड करती है। अगर कोई भी फार्मर ट्रेडिंग के पर्पस से कर रहा है कल्टिवेशन, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डिमांड है आउट देयर वो क्या है और वो उसको मीट कर पा रहा है कि नहीं, उसको केटर कर पा रहा है कि नहीं, तभी उसकी प्रॉफिट बनेगी, तभी वो पैसे कमा पाएगा। तो वो उन डिमांड्स को मीट करने के हिसाब से ही प्रोडक्शन करने लगता है। अगर वो सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को और कुछ और लोगों को खिलाने के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसकी वेरिएशन तब आने लग जाती है जब वो देखता है कि ज़्यादातर लोगों में डिमांड किसी और चीज़ की बढ़ रही है। राजा कुछ और ग्रो करने बोल रहा है, कोई आर्मी का कमांडर कुछ ग्रो करने बोल रहा है, पंडित क्या डिमांड कर रहे हैं, टेम्पल्स में किस चीज़ की डिमांड चल रही है, वो वहाँ ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा, कल्चर, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों से वेरिएशन आती है और उन चीज़ों पे डिपेंडेंट वो अपना कल्टिवेशन करने लग जाता है। एंड हेंस दे बिकम पार्ट ऑफ अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, ठीक है। तो मार्केट में क्या बिक रहा है और क्या डिमांड चल रहा है, एंड ऑल्सो हर एक चीज़ सोसाइटी में और क्या चल रही है उसके हिसाब से वो उनकी लाइफ अपनी जो है, और खास करके नए फार्मर्स की बात हो रही है। कई सारे ट्राइबल्स थे ना जिस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर के, मतलब नए ट्राइबल्स थे जो अभी नए नए फार्मर्स बने थे, उन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। तो जो सोसाइटी काम कर रही है, कास्ट सिस्टम चल रहा है, रिलीजन सिस्टम चल रहा है, एक हायरार्की सिस्टम चल रही है, उन सारी चीज़ों का असर उनके ऊपर आने लग जाता है। देयर वर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्जिंग अमंग्स पेजेंट्स। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो पुराने पेजेंट्स थे अच्छे से जानते थे, उनके पास ज़मीनें थी, फर्टाइल लैंड था, फार्मिंग अच्छे से आता था, प्लस वो डिमांड्स को मीट कर पा रहे थे, मार्केट को समझ पा रहे थे, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे, तो बहुत पैसे कमा रहे थे। कुछ नए फार्मर्स आते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, या इन जनरल पुराने फार्मर्स भी जिनके पास ज़मीन नहीं है, या जो ऐसे डिमांड्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे, नहीं मीट कर पा रहे। अब वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा, एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा अगर बहुत फर्टाइल लैंड नहीं है तो, या फिर वो डिमांड जो रिक्वायर्ड है उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इन चीज़ों की वजह से क्या होने लग गया, इकोनॉमिकल डिफरेंसेस आने लग गए।
कुछ बहुत रिच होने लग गए, कुछ बहुत पुअर होने लग गए, कोई बीच के रह गए। पर अब जो है अलग अलग इकोनॉमिक लेवल, यानी कि अलग अलग कमाई के लेवल के फार्मर्स जो है अब सोसाइटी में एग्जिस्ट करने लग गए। ठीक है, अब आती है जातीज और जाति पंचायत की बात मेडिवल इंडिया में। People were grouped into जातीज और सबकास्ट and ranked based on their backgrounds and occupation, और ये बहुत पहले से सिस्टम चला रहा था। पहले बच्चे बेसिकली जो भी काम करता था, चाहे जो भी आपका बैकग्राउंड हो, आप अगर प्रीस्ट हो, आप अगर टीचर हो तो आप ब्राह्मण हो, आप अगर सोल्जर हो तो आप क्षत्रिय हो, आप अगर ट्रेडर हो तो आप वैश्य हो, ऐसा करके क्लियर ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये डिवीजन किया हुआ था कि ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, पीपल हु वुड डू द क्लीनिंग जॉब एंड washermen and all of these people. I'm not very clear about who exactly would qualify into Shudras, but ऐसे करके लोगों को जो है कैटेगराइज कर दिया गया था। अब देखो जाति सिस्टम शुरू हुआ था बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ, दैट यू वांटेड टू हैव कैटेगरीज ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशन टू अंडरस्टैंड कि अच्छा आप जब बोल दो आपकी जाति ये है कि मतलब आप ये काम करते हो, आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। बट वक्त के साथ साथ इसको बाउंडेशन बना दी गई। जब कास्ट सिस्टम आ गया तो लोगों की आइडेंटिटी बन गई वो, और उसे कोई बदल नहीं सकता था, और इस वजह से उस साइकिल में भी फंस गए हम कि जो जो काम करता है उसके परिवार जने आगे चलकर वही काम करते गए। सोल्जर का बेटा सोल्जर बना, राजा का बेटा राजा बना, प्रीस्ट का बेटा प्रीस्ट बना, जो शूद्रा जो ट्रेडर है, मर्चेंट्स हैं, उनके बच्चे वो बने, फार्मर्स के बच्चे फार्मर्स बने। सो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड एज अ बाउंडेशन ऑफ द सोशल सिस्टम दैट गॉट क्रिएटेड। जो सोसाइटी में एक सिस्टम क्रिएट कर दिया गया तो उसकी वजह से एक जबरदस्ती का प्रेशर आ गया और वो उसी सिस्टम को कंटिन्यू करते गए। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, लेकिन रैंक जो जाति जो है ऑक्यूपेशन के बैकग्राउंड के बेसिस पे फिक्स थी, रैंक फिक्स नहीं था। ये वेरी करता था पावर के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से, रिसोर्स ऑफ द जाति मेंबर, लेकिन वो भी इधर ज्यादा नहीं होता था। मतलब ये है कि क्षत्रिय ऊपर होगा कि ब्राह्मणा ऊपर होगा, ये ऊपर नीचे होता रहता था कि किसके पास ज्यादा पावर है। पहले जो राजा भी हुआ करते थे ज्यादा ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वैसे क्षत्रिय नहीं होते थे। तो किसके पास ज्यादा पावर है, किसका इन्फ्लुएंस है, किसकी जो इन जनरल मतलब सोसाइटी में सबसे ज्यादा पूछ है, अगर राजा की है तो क्षत्रिय टॉप पे है, अगर पंडित मतलब आपके पंडितों की है, जो टीचर्स हैं उनकी है, स्कॉलर्स की है, तो ब्राह्मण्स ऊपर हैं। ऐसे करके वेरी करते रहता था। और रिसोर्सेज हर एक जाति मेंबर के पास कितने हैं, यानी कि ज्यादा रिच मेंबर्स जिस कास्ट के हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Rules and regulations were framed and managed by the elder members and leaders of the जातिस। तो हर एक जाति का क्या सिस्टम होगा, क्या रूल होगी, क्या रेगुलेशन फॉलो करेंगे, ये सब कुछ उस जाति के, उस कास्ट के जो लीडर्स होते थे और जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स होते थे या जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या उस जाति में वही सबसे प्रॉस्परस हैं, ये सारे लोग ये सारा कॉल लिया करते थे कि कैसे फंक्शन करेगा इस जाति का, क्या करना है, क्या हमारा फ्यूचर होगा, एटसेट्रा। द असेंबली ऑफ द जाति एल्डर्स वाज कॉल्ड एज जाति पंचायत। तो जैसे ग्राम पंचायत का कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो मिलते हैं, मिलकर के डिसीजन मेकिंग करते हैं, गवर्नेंस करते हैं, इसको ग्राम पंचायत कहते हैं। वैसे ही जाति पंचायत बनने लग गई। हर एक जाति की एक असेंबली बैठने लग गई जहां वो डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या नहीं करना है, हमारी जाति के लिए क्या अच्छा है, प्रोग्रेस की बात, रूल्स, रेगुलेशंस, सिस्टम्स दैट द यंगस्टर्स वर सपोज टू फॉलो, कौन क्या जॉब्स लेगा, बाकी लोगों के साथ इक्वेशन क्या बनेगी, सोसाइटी में कैसे रूल करना है, एटसेट्रा। इसको जाति पंचायत कहने लगा, यानी कि असेंबली ऑफ पीपल ऑफ द सेम जाति टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द जाति। एक ही जाति के लोग आते थे, लीडर्स आते थे, आप समझ लो, वो डिसाइड करते थे कि इस जाति का फ्यूचर कैसा होगा, क्या रूल रेगुलेशन होगा, कैसे सबको फंक्शन करना है, और उस असेंबली को, उस मीटिंग को जाति पंचायत कहते थे। देयर वर सेवरल जातिज इन अ विलेज एंड दे ऑल हैड टू फॉलो द रूल्स एज वेल। एक मेन लीडर ने बना दिया, और भी जो भी जाति है वो सब अपने हिसाब से फॉलो करती थी, सबको बोल दिया जाता था कि आपको ये रूल फॉलो करना है। दीज विलेज रूल्स वर फ्रेम्ड बाय द विलेज चीफ्टेंस। तो जाति के अंदर का रूल तो बना, एक स्टैंडर्डाइज्ड रूल भी बनता था। जो विलेज के जो हेड होते थे, लीडर्स होते थे हर एक गांव के, वो लीडर्स जो डिसाइड करते थे वो बाकी सारी जातियों को भी फॉलो करना होता था। एक ऐसा समझ लो कि जैसे अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि एक स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारे बाकी मिनिस्टर्स स्टेट को चला रहे हैं। फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट है हमारा, जैसे ग्राम पंचायत, एक गाँव का अपनी सरकार है, वहाँ पे जो सरपंच है, उस गाँव का जो लीडर है, वो रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है, वही बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो वैसे ही आप समझ लो कि ये लीडर्स हैं गांव के,
बाकी जाति वाले लोग अपना अपना यूनिट चला रहे हैं, साथ ही में लीडर एक स्टैंडर्ड रूल निकाल रहा है जो पूरे गांव को फॉलो करना है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सबको सुनना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज जाति रैंक्स वर फिक्स्ड परमानेंटली, ट्रू और फॉल्स? Jati ranks were fixed permanently. So rank of the jatis were not fixed as we know. It used to vary depending upon कौन ज़्यादा influential है, किसके पास ज़्यादा power है, so on and so forth, right? Okay. Now pan-regional empires in medieval India. हम कुछ एरियाज का समझ चुके हैं, बाकी पूरे रीजन में मेडिवल इंडिया में क्या चल रहा था। जैसे हमने ये भी बात की कि हिंदुस्तान हम उस एरिया को बोलते हैं जो दिल्ली सल्तनत के अंदर था, बट उसके अलावा बाकी एरियाज में क्या थे? तो लार्ज स्टेट्स थे जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, वो एनकम्पस्ड मैनी रीजन्स। तो मेडिवल इंडिया में ऐसा है कि एक पॉइंट पे अलग अलग रीजन में कई सारे ऐसे लोग थे, कहीं कहीं चोलास है, कहीं मराठास है, कहीं तुगलक्स हैं, कहीं मुगल्स है, फिर मुगल्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाते हैं। तो एक संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियाजुद्दीन बालबन स्टेट्स ही रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर। तो 1266 से 1287 तक गियाजुद्दीन बालबन हु वाज एक्चुअली अ दिल्ली सल्तनत एज वी लर्न, ठीक है, मलमुक डायनेस्टी के रूलर थे वो। इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर रूल किया है। एक प्रशस्ति है वहाँ पे इस चीज़ में उनकी बड़ाई की गई है और इस चीज़ का मेंशन किया गया है दैट एज अ रूलर हाउ स्ट्रॉन्ग वाज ही एंड व्हाट वाज हिज इन्फ्लुएंस। इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल विच इज़ योर गौडा, बंगाल का गौडा जो प्रेजेंट बंगाल में गौडा एक जगह है वहाँ से, इन द ईस्ट यानी कि बंगाल से समझ लो, वेस्ट बंगाल से समझ लो, वहाँ से चला टू गजनी विच इज़ गजाना, अफगानिस्तान, बंगाल से अफगानिस्तान तक बच्चों इन द वेस्ट एंड साउथ में और नीचे साउथ इंडिया तक भी काफ़ी हद तक गया है, द्रविड़ा तक। ये पूरा रीजन दिस रूलर अलोन वाज एक्चुअली रूलिंग, ही वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस एंटायर पोर्शन। नाउ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स इफ वी हैव टू टॉक अबाउट, गौडा हो गया जो बंगाल की बात कर रहे थे हम, आंध्र प्रदेश ऑफ प्रेजेंट, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his armies। तो ये वो एरियाज है जैसे महाराष्ट्र हो गया, प्रेजेंट आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका तक ही केम इट सीम्स, केरला तक। तो यहाँ पे कोई ना कोई रूलर्स रहे होंगे, कहीं चोलास रहे होंगे, कहीं कोई रहा होगा। तो व्हेन ही वुड कम द आर्मी वाज सो स्ट्रॉन्ग, हैड सच अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस कि लोग आर्मी को देखते, इनको देखते भाग जाया करते थे। पीपल डिड नॉट यूज्ड टू ट्राई टू फाइट विथ हिम, हिज आर्मी, दे वुड फ्ली अवे। Historians, however, considered these as exaggerated claims of conquest। कई सारे लोगों ने, हमारे historians ने कहा है कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था। Of course, there was a control, there was a certain rule and there was an influence। लेकिन जिस extent में बताया जा रहा है कि आर्मी देखिए और भाग गए कि आप ले लो हमारी सल्तनत, ले लो हमारा रूल, ले लो, इतना ज़्यादा नहीं था। By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics। They were also associated with specific ruling dynasties। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इंडिया हमेशा से बहुत डाइवर्स रहा है। अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग कपड़े पहनना, खाना खाना, भाषाएं बोलना, अलग कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करना हमारी इंडिया को डिफाइन ही करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी से। वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है।
लेकिन ये सब भले आपस में कितने ही डिफरेंट रहे हों, ये सब एक डायनेस्टी का, एक किंगडम का हिस्सा बन जाते थे और उस एक राजा के द्वारा जुड़े रहते थे, बंधे रहते थे। यानी कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में मराठी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटका में कन्नड़ा, केरला में मलयालम, गुजरात में गुजराती, है ना, बंगाल में बंगाली, ये सब अलग भाषा बोल रहे हैं, सबके ट्रेडिशंस अलग अलग है, अलग अलग रीजन है, अलग कपड़े, अलग वेदर, सब अलग है। लेकिन ये सब जब एक राजा के अंदर आ रहे हैं तो इस राजा से यूनाइटेड रह रहे हैं। दिस राजा, दिस वन किंग इज बेसिकली होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर, चाहे लोग आपस में इन रीजन्स के कितने ही अलग अलग क्यों ना हो। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, राइट। कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन दीज स्टेट्स नेचुरली। अब जब आप इतने वेरिएशन वाले लोगों को साथ में लेकर आओगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ होना या कुछ कंफ्यूजन होना, थोड़ी प्रॉब्लम होना बहुत ही लाजमी है, एंड दैट यूज्ड टू हैपन एज वेल, ओके। Then occasionally dynasties like the Cholas, the Khaljis, Tughlaqs, Mughals built an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. तो कई बार ऐसा हुआ, जैसे कि गयाजुद्दीन जी के केस में हमने देखा, बट अदरवाइज ऑल्सो बने ऐसे कुछ डायनेस्टीज जहाँ पे क्या था, वो इतनी वास्ट थी, इतनी बड़ी थी कि बहुत सारे तरह के रीजन्स और कल्चर्स उसमें अक्यूमुलेट हो जाते थे, जुड़ जाते थे, उसका हिस्सा बन जाते थे, ठीक है। Now Mughal Empire declined in 18th century, leading to the re-emergence of regional states. तो बेसिकली ऐसे किंगडम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं जो इतने बड़े थे कि वो ऐसे अलग अलग एरियाज को कवर कर लेते थे, उसमें आते हैं आपके चोलाज, आते हैं खलजीज, तुगलक्स, मुगल्स, ये सब उसका एग्जाम्पल है। लेकिन मुगल्स जब एक बार खत्म होते हैं तो बचे ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, हमारे अंग्रेज आ जाएंगे। लेकिन जब अंग्रेज आते तब भी मुगल्स थे, बहादुर शाह जफर वो स्टिल देयर, लेकिन वो जो एरिया था जिसमें वो थे वो बहुत छोटा हो जाता है, जो कंट्रोल का एरिया होता है। जैसे अकबर ने एक बहुत वास्ट एम्पायर बनाया मुगल्स का, वो सेम एम्पायर सब मेंटेन नहीं कर पाए, औरंगजेब उसको और नीचे तक ले गए। लेकिन सब लोग आगे उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते और उतने दिन तक उतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते। तो जब मुगल्स जिन जगहों से निकलने लग जाएंगे, उन जगहों पे जो रीजनल आपकी डायनेस्टीज हैं या रूल हैं वो वापस आने लग जाएगी। यानी कि इन सारे लोगों के आने के पहले जो सिस्टम चलता था कि रीजन है, रीजन का एक लीडर है अपने कल्चर से, वो सेम सिस्टम जो प्रिंसली स्टेट्स का सिस्टम है वो वापस आने लग जाएगा। तो 18वीं सेंचुरी में, यानी कि 1700s में, जब मुगल्स कई सारे जगह से निकाले जाने लग गए, तो बेसिकली मुगल में क्या होता है कि उनके एम्पायर तो उतनी बड़ी रहती है लेकिन राजा कमजोर, तो आर्मी कमजोर, तो स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है तो राजा कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। और राजा जब कंट्रोल नहीं रख पा रहा है तो दूसरे लोग इस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, तो वो आएंगे और अपने छोटे से एरिया के लिए लड़ाई करेंगे। पूरे एम्पायर के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, छोटे से एरिया के लिए लड़ाई करेंगे, लड़ाई जीतेंगे, छोटे एरिया को ले लेंगे और अपना वहाँ पे रूल करेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक जगह जाएगी, 2 जगह जाएगी, 10 जगह जाएगी, 20 जगह जाएगी और एम्पायर छोटा होता जाएगा। तो यही हुआ यहाँ पे। However, years of imperial pan-regional rule altered the characters of the regions. यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए तो ये जो छोटे छोटे रीजन्स थे, जो उनका अपना रूल चल रहा था यहाँ पे, जो डायनेस्टीज बनी हुई थी, जो कल्चर फॉलो कर रहे थे, जिस बेसिस पे इन्होंने अपनी पूरी वो बनाई थी, किंगडम्स बनाई थी, वो ऑल्टर हो जाती है क्योंकि ब्रिटिशर्स के रूल्स आ जाते हैं, ब्रिटिश अपने हिसाब से चेंज करने लग जाते हैं। कुछ लोग सेम भी रह जाते हैं बट उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव, अपडेट, शिफ्ट कल्चर में, ट्रेडिशन में आ ही जाता है, ठीक है। तो एक संस्कृत प्रशस्ति है जो प्रेज करती है दिल्ली सुल्तान गयाजुद्दीन बलबन को 1266 से 1287 तक जिन्होंने रूल किया था, अबाउट द फैक्ट दैट ही हैड अ वास्ट एम्पायर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स?
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू यू गाइस, राइट? और संस्कृत प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रशस्त करना मतलब बड़ाई करना, किसी की प्रेज करना, टू प्रेज समबडी। तो पहले इंस्क्रिप्शंस लिखे होते थे, कई जगह कार्विंग्स होती थी या टेक्स्ट लिखे जाते थे, तो उनमें एक संस्कृत प्रशस्ति है जो प्रेज में लिखी गई थी गयासुद्दीन बलबन के, जहाँ पे इस चीज़ का की बड़ाई की गई है, इस चीज़ को प्रेज किया गया है, ठीक है। Now, emergence of distinct and shared traditions in medieval India. Across most of the subcontinents, regions were left with legacies of the big and small states that had ruled over them. देखो बेटा, कोई भी कभी भी छोटे ही वक्त के लिए जब आपको रूल करके जाता है और चला जाता है, उसका असर, उसका इफेक्ट, उसका इन्फ्लुएंस दिखता है उन रीजन्स पे, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिशर्स जब चले गए, खैर उन्होंने बहुत लंबे समय तक रूल किया हमें, बट फिर भी व्हेन दे लेफ्ट वी कैन स्टिल, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच वी हेटेड देम एंड वी वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम, वी कैन स्टिल सी देयर इफेक्ट इन आवर कल्चर, इन आवर लिविंग इन सो मेनी वेज, राइट? तो कहीं भी कॉन्टिनेंट में, जहाँ भी रीजन में कोई भी बड़ा राजा या छोटा राजा कोई भी रूल करके गया, उनका असर हमें देखने को मिलता है। वी सी देयर इन्फ्लुएंसेस एंड इट वाज अपैरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मेनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस। तो जो अलग अलग ट्रेडिशंस है लोगों के, जिनमें से कुछ में कुछ अलग है बिल्कुल आपस में, कुछ मिलते जुलते हैं, इन सारे ट्रेडिशंस में हमें ये भी दिखता है इन द रियल्म्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलीट कल्चर्स एंड लैंग्वेज। यानी कि कैसे सरकार चल रही है, क्या भाषा बोल रहे हैं लोग, क्या कल्चर फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमी कैसा मैनेज हो रहा है, इन सब चीज़ों में आप वो फर्क और साथ ही साथ वो सिमिलैरिटी, दोनों ही चीज़ें देख पाओगे और दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि हजारों साल जो हमारे रहे हैं 700 से 1750 के बीच में, द इयर्स, द थाउजेंड इयर्स बिटवीन 700 to 1750, द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक रीजन एक अलग तरीके से ग्रो कर रहा है और सबसे बिना जुड़े अकेले में ग्रो कर रहा है। आइसोलेशन क्या हो गया? अवे एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अदर्स, दैट इट्स ग्रोइंग ऑन सेपरेटली ऑन इट्स ओन। दैट नेवर हैपेंड. So these regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. So it doesn't mean that कोई भी अकेला ग्रो नहीं कर रहा था और अपनी अलग आइडेंटिटी मेंटेन नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ अपनी अलग आइडेंटिटी जिसपे किसी का असर ना हो, ऐसा नहीं हो रहा था। हर जगह एक डायनेस्टी का, एक किंगडम का, एक जगह का दूसरे जगह से कुछ लेना देना था, कोई ट्रेडिंग होती थी, कोई कल्चरल एक्सचेंज होता था। तो वो भले डिफरेंट हो बाकियों से, लेकिन पूरा अलग है ऐसा नहीं था। कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ मेल जोल जो है, दूसरी जगहों का असर, इन्फ्लुएंस उन हर एक जगह पे दिखता था, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। सो देयर वाज बेसिकली merging of and influences of various cultures of people on each other. Now I just want to take a quick moment, but we'll first summarize what we have done. The period from 700 to 1750 witnessed significant technological advancements such as the Persian wheel, spinning wheel, the firearms, alongside the introduction of new crops and beverages in the subcontinent. Mobility was prevalent as people travelled extensively in search of opportunities, contributing to economic, political, social and cultural changes. Rajputs, Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayasthas, ये कुछ नए ग्रुप्स थे जो इमर्ज करते हैं और जिन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहते हैं। फॉरेस्ट क्लियरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, हैबिटेट चेंजेस आने लग जाते हैं बिकॉज पीपल वांटेड टू डू एग्रीकल्चर कल्टिवेशन। इसकी वजह से फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं कई सारे पेजेंट्स बन जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और जो नए पेजेंट्स थे वो मतलब इकोनॉमिकली लेवल्स डिफाइन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली। Society organized into jatis with ranks based on background and occupation, governed by rules enforced by jati panchayats and village chieftains. यानी कि जाति पंचायत, तो सबकी जाति कैटेगरीज बैकग्राउंड पहले से फिक्स्ड थी, जो कि उनके ऑक्यूपेशन पे बेस्ड थी। इनके अपने रैंक्स फिक्स नहीं थे, वो डिपेंड करता था कि कौन ज़्यादा रिच इन्फ्लुएंशियल है, वो ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता था, लेकिन सबकी अपनी जाति पंचायत थी जो जाति के लिए रूल रेगुलेशन डिसाइड करती थी, और हर एक गांव के एक चीफ्टन, एक लीडर थे जो गांव के लिए रूल डिसाइड करते थे, जो सबको फॉलो करना था। लार्ज स्टेट्स जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, ये डाइवर्स रीजन इनकम्पस करते थे, जहाँ पे ऑफ कोर्स आपस में अलग अलग
कल्चर की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था, एंड ओकेजनल पैन रीजनल एम्पायर्स में भी ये चीज़ हमने देखा है. But the decline of the Mughal Empire resulted in re-emergence of these regional places, but they were all having diverse yet shared tradition. Diverse था, different भी था, लेकिन shared भी था. सब सिर्फ अकेले नहीं थे across the entire subcontinent. Now guys, if you want to basically know what we are going to do next, let's quickly have a look. सो बेटा इंडिया आप हमें समझ आ गया कि अलग अलग रीजन्स में तो डिवाइडेड था, बट साथ ही साथ अलग अलग रिलीजन्स में भी डिवाइडेड था कहीं ना कहीं, जिनका कल्चर बिलीफ सब बहुत अलग था एक दूसरे से. थाउजेंड्स ऑफ हिस्ट्री, ईयर्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग राइट नाउ, ये जो 1000 साल हम मेडिवल इंडिया का एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें कई सारे रिलीजियस डेवलपमेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट होते हैं जो पहले नहीं देखा गया वो इस वक्त देखा जाएगा. अब वो रिलीजन कैसे डेवलप होता है और क्या शिफ्ट आता है और उसका सोसाइटी पे क्या असर होगा, दैट वी गोना एक्सप्लोर इन द नेक्स्ट सेशन. So make sure that you are staying tuned. Do not forget to hit the like button if you enjoyed the session. Do share the video with your friends if you liked it and you feel it will help them. चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आने वाले सेशंस मिस हो जाएंगे फिर, तो आपको डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड रहना है. एंड do tell me in the comment section how did you like this session, and if you would want any other assistance from me, if you have a doubt, comment में बताकर जाना है. और बच्चों इम्बाइब पे हम आपके लिए वैसे भी डाउट रेजोल्यूशन कर रहे हैं रेगुलरली, आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं. वीडियोस बने हुए हैं जो आप स्पेशली हिस्ट्री आप देखोगे तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस, इट्स लाइक अ स्टोरी, इट विल बी लाइक वाचिंग अ मूवी, एंड विजुअल अंडरस्टैंडिंग जब आती है तो बहुत कॉन्क्रीट आती है, राइट. तो आप इसकी मदद से आप सब रिवाइज कर सकते हो, अपने लर्निंग के प्रोसेस में अपने पेरेंट्स को हिस्सेदार बना सकते हो. नॉर्मली हम जब पढ़ रहे होते हैं, कुछ ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आता है हमारा कि हम प्लान कैसे करें, स्ट्रैटेजाइज कैसे करें. तो आप अपना गोल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. आपको B2 से A1 पे जाना है, A1 पे A2 पे जाना है, जो भी है आप टॉपिक के लिए डिसाइड करो, चैप्टर के लिए, सब्जेक्ट के लिए, और आपके लिए प्लान बनाकर हम देंगे. आपने सिर्फ बताना है आप कितना दिन रोज़ डेडिकेट कर सकते हो, कितना टाइम पढ़ने के लिए, और कितने दिनों में आपको अचीव करना है. यू विल हैव ऑल द असिस्टेंस, रिमाइंडर, एवरीथिंग. इट्स अ ब्यूटिफुल फीचर. एंड प्लस यू हैव नॉर्मली हमारे एनसीईआरटी में कितने सवाल दिए होते हैं, 5-6, और कुछ 1-2 सवाल हम खुद से बना लेते हैं, 1-2 सवाल इधर से मिल जाते हैं. नॉट इनफ फॉर प्रैक्टिस. So here you have on Imbibe platform unlimited amount of questions, tests, practices that you can keep taking and enhancing your depth and knowledge. Plus the Kubos and the Imbibe lens का magic you guys have already seen. But I just want to say that बच्चों ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही है. अब Imbibe free हमेशा नहीं रहेगा, तो कर लो जितना एक्सप्लोर करना है. और Imbibe का जो हमारा वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस है उसकी ब्यूटी आप देख लोगे जब आप एक्चुअली इसको एक्सप्लोर करोगे, when you will actually be practically practicing the practicals. It's going to be amazing. And then you have a lot of great videos that's available on our Imbibe app. So please make sure that you are downloading these, exploring it. And with this, I'm going to wind up the session. Thank you so much for being here. Next session में जो कि कल आ जाएगा, हम ये chapter भी finish कर लेंगे. तो मिलते हैं कल. Till the next time, hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves and stay tuned and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.